Yes, I hope my screen is visible. Chiransh, Akshat, Mohit, anyone who would like to summarize what we talked about in the last class? You can raise hands. Yes, Mohit. Ma'am, we talked about the ma'am the condition of education, ma'am, in the elementary school, ma'am, in the slum areas, ma'am, how the girl is done her head down because she was fed up of the ma'am inequality in education, and ma'am, and a boy who is ma'am whose eyes are like rat, and ma'am he's get a disease from his father, and ma'am. Wait. Mohit, you are right that we learnt about a boy who is having rat eyes. He's very thin, but this boy is another boy, the stunted, unlucky hire of twisted bone. This is third boy, third child. Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes. continue. And ma'am, also a cute boy, ma'am, and a small boy. Uh, he wanted to, ma'am, also play like a squirrel. Okay, thank you, Mohit. Chiransh, you also raised hand. Yes, ma'am. The poem depicts about a scene of a slum area in which there are several students, and the condition of the education system is not good. Yes. So, what is the second stanza focusing on? हम वहाँ पे एक शेक्सपियर की फोटो लगी हुई है जो बार बार उन बच्चों को बताती है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते बुक जिससे मतलब वो शेक्सपियर की स्टोरीज पढ़े. Okay. So, let me give a quick recap of the thing. Chiransh and Mohit said it very rightly. Akshat, would you like to add? Akshat? Far means the first stanza is simply talking about the students in the classroom. Elementary school in British countries, primary school is called elementary school, where the elementary stage of learning those primary letters, A, B, C, D, and all those things are being taught to the students. Yes, and a slum area, a downtrodden area which is not well kept. The area is not having such a good condition of the people. They are not socially upkept in the society. Yes. So first stanza is talking about the condition of the students, the children, that how they are like unwanted weeds. Their clothes, their body, their eyes, their dreams means what all they are focusing on. Second stanza is talking about the environment of the classroom, the walls. They are having unpleasant cream color. The pictures are all donated by somebody or the other. One is Shakespeare's picture, another is the domes, the civilized domes which are there in all the cities of elite. Then another picture is of Tyrlees Valley, the valley in Austria. Yes, it is a flower valley. Then there is a map also, the map which is showing another world to the children of slum, this world. Yes, and these children, they, for them, these all these things are meaningless. Why? Because their future, their map is all bleak, unclear. Their future is all painted with a fog, as if they are all running, they are all standing in a narrow street. You all know that in a narrow street there is no source of light. So in the same manner, they have no source of education, good education, to change their social status. They are far away from those rivers, capes, stars of words, means all those imaginary things, means they think they exist only in their imagination, and they don't know how they exist actually in reality. So we talked about the third stanza also. Shakespeare is definitely wicked, bad here. The map is not a good example to teach or to talk about. Ships
sun, all those tales of Shakespeare, all the things that are shown through the map are all giving them temptations, provoking them to steal. नेचुरली उन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, ना वो शेक्सपियर की एलीट क्लास या फिर जो प्लेज उसने लिखे हैं वो पढ़ सकते हैं, ना ही वो मैप में जितनी चीजें दिखाई गई हैं ना उनको विजिट कर सकते, तो वो क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू स्टील for lives that slyly turn in their cramped holes, because their lives are trickily turning them into their own cramped, confined holes. Means their life is confining them more and more to their restricted zones. Are they moving from fog to endless night? So is education not going to do anything for them? Is it going to take them from an unclear zone to a night, to a dark zone completely, where there is not going to be any end at all? Is it that way? The poet is asking this question to all of us. That why these donations are being made? To tempt them to steal? To motivate, to provoke them to steal? Or to make them realize how poor they are, that they should be confining themselves more to their restricted areas? Yes, and apart from this, are these all things being donated? Are they turning them more into their own endless night of darkness, hopelessness, hunger, lack of education, proper resources, amenities? On their slag heap, these children wear skins peep through by bones. अब इस लाइन को ध्यान से समझना. Slag heap, heap of garbage सुना आप लोगों ने? Yes, have you heard about the heap of garbage? So, the heap of garbage. Akshat, is my voice clear now? Akshat? Yes, ma'am. Okay, thank you. So, now the poet is saying that on their weak heap, heap means body structure, these children wear skins like we wear clothes. So the skin is compared to those clothes. Sometimes when you people want to, or you must have seen the heroes, the male protagonists, when they want to show off their skin, their six-pack abs, what do? They wear transparent shirts. Yes, you are able to look through their body. You are able to look at their body. Yes. So he's talking about the same thing, that on their weak body structure, the children are having skin, and that skin is just like those clothes through which the bones are peeping. Peeping means dikhai dena. As if bones are trying to have their presence felt, trying to be visible. जैसे हम झांकते हैं डोर नॉब के उससे, डोर होल से, की होल से. So the bones are peeping through those skins, means how pale, how weak, how lean these children are. And spectacles of steel with mended glasses. And the children are wearing specs. अब हमें सबको पता है, हम specs जब पहनते हैं, we all know, we firstly look for comfort. Do we? We look for comfort कि comfortable होना चाहिए, नोज के आसपास निशान नहीं पड़ने चाहिए, heavy नहीं होना चाहिए कि सिर दर्द होने लग जाए, ऐसा कुछ ना. These children are having the spectacles which are made of steel, means ये जो boundary होती है spectacles की, this is all made of steel. And it is really uncomfortable to wear, with mended glasses. और ये जो glasses हैं, these glasses are even broken, they are mended. आपने देखा जब ग्लास में क्रैक आ जाता है तो उसकी अपीयरेंस कैसे होती है? I'll show you in a minute. Like bottle bits on stones. जब बॉटल स्टोन पे टूटती है, जब बॉटल स्टोन से स्ट्राइक करती है तो क्या होता है? कांच बिखर जाता है सब जगह, and you find the pieces everywhere. In the same manner, those glasses which are there in their specs are all mended. Yes, Akshat, you want to say something? Okay. So all of their time and space are foggy slum, and the whole of their time, their life, their space is restricted to this slum, which is unclear, which is not having those facilities, those amenities that they can develop, that they can grow up in their life. They can look for a different life altogether. Yes. So blot their maps with slums as big as doom. Blot means to put a mark.
to put a mark. जैसे कभी हम लोग, आप लोगों को याद होगा, जब कभी हम पेन से काम कर रहे होते हैं and the nib of the pen breaks, what does it do? It blots on the paper. तो जब हम कभी जब पेन से काम करते हैं तो जैसे उस पेपर का वो पेपर पे उसका मार्क आ जाता है. In the same manner, the poet is asking to blot the maps, put the mark on the maps. That slums means put the marking on the map showing slums as big as disaster, as big as doom, as big as havoc. Means people generally overlook, avoid the existence of these slums. So let us mark on these maps कि slum कहाँ कहाँ पे है, ताकि लोगों को realize हो, उनको याद आए कि ये भी exist करते हैं. अगर हमें elite के बारे में सोचना है, अगर हमें powerful के बारे में सोचना है, तो उनके बारे में भी सोचना है जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है. So let us make a mark on the map with slums, existence of slums which are as big as doom. Disaster का impact हमें पता है कितना बड़ा होता है, तो हमें उतने बड़े impact के साथ इन blottings को करना है, इन markings को करना है, so that they are able to grab the attention of the people in power. Yes, अब चलो पहले third stanza पढ़ते हैं, उसके बाद मैं third stanza का explanation पढ़ते हैं, then I'll take you to the next stanza. Yes, third stanza. Akshat, would you read? Akshat? Yes, ma'am. Yes, bacha. Are you able to see my screen? Will you be able to read? Yes, ma'am. Yes. The poet feels that screen is bigger. The poet feels that Shakespeare is wicked as he is mislearning those naive children through his words, portraying the worlds or ships. क्या हुआ अक्षर? अच्छा चलो, I'll read. मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है. Portraying the world of ships, sun and love, which is not only unreal for them, but it has a negative impact on their minds. अब आप यहाँ ग्लास देख रहे हो, ये वाला, how the glass is cracked of the specs. So they are wearing such kind of specs where there the glass is not complete one piece. He feels that this would instigate them. Instigate means provoke them to steal or to take unfair means as they desperately make attempts to escape from their cramped holes. Cramped means confined holes. Their existence is indeed very sad. These deprived children are so skinny that it appears that they are wearing skins. The spectacles they are wearing have glass which has been broken and mended. Mended means जिसको ठीक कराया जाता है. Their entire appearance reflects their misery and deprivation. The poet shows his indignation. Indignation means serious efforts by suggesting that the maps on the classroom walls should show the reality of their life. It must show the huge slums instead of beautiful scenic graphics. Maps are generally showing all the things which are very beautiful, things that the people can generally visit. Nobody likes to show the dirty part, the means the scornful part. So he's saying that let us mark these slums on the map so they show the reality of the existence of these people. Yes, these children. Is it clear? Third stanza? Yes, ma'am. Okay. Fourth one. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break, open till they break the town. Now he's saying that until or unless governor means somebody from the governing body. Inspector is again a person of authority. Visitors, this map becomes their window, means this map should be showing them the window. Like a window shows us the outer area,
So this map should be showing them the reality of the slum areas. And these windows and those kind of windows that are shutting, that are closing down everything for these kids' lives, like catacombs. Catacombs are underground cemeteries. Cemeteries क्या होती हैं? जहाँ पे dead bodies को दफनाया जाता है. So underground cemeteries break open till they break the town. So let us all come together and break such windows that are confining, that are closing the opportunities to reach these children. And let us break in such a manner that they break and the children are able to directly reach the town. सबको समझ आई? 4 लाइनें एक साथ कनेक्टेड है. Yes, Chiransh. And what is the meaning of catacombs? Catacombs is cemeteries. Cemeteries ये SY वाला नहीं है. Cemeteries are जो ये कब्रिस्तान होते हैं, वहां पे जो वो tombs होते हैं, the graves, they are called cemeteries. CEMETRIES. So the poet is saying that until the people in power are going to look at these map and identify through these map these windows that show them the reality of the slum world. Yes, and these windows that are shutting down, closing down all the opportunities for all these children, like catacombs. जब एक cemetery में किसी को डाल दिया जाता है, चाहे वो person alive है या dead है, is he able to come out? आप लोगों ने देखा है हॉरर मूवीज में तो स्पेशली यही प्लॉट होता है ना? No, ma'am. Yes. So the person is not able to come out. In the same manner, these windows are shutting down the opportunities for these slum children, like cemeteries. So let us break them till they break the town. Means there should not be the time that the town is on the verge of, mean the system is going to break up. The system is going to dilapidate. हमें वो नहीं करना कि सिस्टम सारा खराब हो जाए. इससे बेटर है जब तक वो गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर नहीं आते, ये मैप ही उन बच्चों के लिए उनकी विंडो है जो उन्हें बाहर की दुनिया दिखाती है. कौन सा मैप जो वो अपनी विंडो से देख पाते हैं? उनकी मैप कौन सा है? उनका मैप है उनका स्लम. और ये विंडो जो स्लम का एरिया है, जो उनके साथ ये टैबू अटैच है कि वो स्लम को बिलोंग करते हैं, इस टैबू ने उनकी लाइफ के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दी हैं. जैसे एक डेड बॉडी को सिमेट्री में डाल दिया जाता है तो उसके बाद उस डेड बॉडी का कुछ नहीं होता, इट टर्न्स इनटू अ स्केलेटन. ऐसे ही इन बच्चों का फ्यूचर जो है बिल्कुल ब्लीक है, डिम है. सो लेट अस ब्रेक दीज विंडोज ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन. सो ऐसे इन विंडोज को खोला जाए जब तक कि ये तोड़ के, मतलब सब बैरियर्स को खत्म करके, जब तक ये टाउन तक ना पहुंच जाए, सिटीज तक ना पहुंच जाए. एंड शो द चिल्ड्रन to green fields, and these children of the slum should also be able to experience the green fields. इन बच्चों ने आज तक उन green fields को नहीं देखा, blue sky को नहीं देखा, rivers को नहीं देखा. क्योंकि इनकी सारी दुनिया इनका slum है. They are not able to step out of it and make their world run azure on gold sands. Azure is blue color. Yes. So like rivers, when they run, rivers जब नदियों का पानी बहता है या समुद्र में जब आप पानी को देखते हो, it is sea green in color. Yes. So he is saying that let us break these windows, let us connect them to the town, and let the children be given the opportunity to experience green fields. Let their world be one with the world of beauty. They should be able to run, enjoy the blue sky, the gold sand, and let their tongues run naked into the books. Let their tongues, let them imbibe, let them absorb. Run naked means जैसे हम कुछ भी taste करना होता है, when we lick the ice cream, do we cover our tongue with something? No, we never cover our tongue. So as the tongue licks the ice cream and we get the taste, so let them not be covered with any inhibition. Let them have the experience of the books, the white and green leaves. White refers to the white pages of books. कि education का right भी discriminated form में ना आए उनके पास.
हमें वो अपॉर्चुनिटीज तैयार करनी है कि ना सिर्फ उन्हें नेचर का एक्सपीरियंस मिले, इक्वालिटी का एक्सपीरियंस मिले, वो भी एक क्लियर ओपन स्काई को देख पाए, गोल्ड सैंड्स को एक्सपीरियंस कर पाए, but also they should be getting the right to complete education, the education with which they can relate. And green leaves refer to nature. Yes, history theirs whose language is the sun, and they should be having the history as theirs. The history should belong to them whose language is the sun. So he is saying that let these children create history. Yes, run naked into books, the white and green leaves open history for them, whose languages means let them also reach the zenith of success. Let them also create history. Let them also be able to touch the sky. चलो फोर्थ स्टैंजा का एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, देन आई टेक योर डाउट्स, अगर किसी को अभी भी कोई डाउट रह जाएगा तो. ठीक है. सी, catacomb is an underground place where people are buried. Doom, death, ruin, very bad event or situation that cannot be avoided. Blot, abolish, destroy. Flag, refuge, unwanted material. Azure, I already explained. Yes. अभी देखो फोर्थ स्टैंजा को पढ़ते हैं जल्दी से, then we will talk about the rest part of the poem. Yes, fourth stanza. Now in fourth stanza, the poet is trying to give us a conclusion. The poet is appealing the teachers, governor, inspector, and visitors to be sensitive and do something to improve the conditions of these deprived children. They must try to align the world. Align means एक line में, एक series में लाया जा सके, and transform their map, unlike the map of children with amenities. Means जिन लोगों के पास सब facilities हैं, सब resources हैं. Amenities means all the facilities. Those who have all the facilities, when we are comparing, so these children will be having their map similar to them, and that too should exist in reality. ये नहीं है कि हमने map donate कर दिया, उस map में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, बच्चा तो उससे relate ही नहीं कर पाएगा ना. The poet hopes that bureaucrats and authorities will understand their moral responsibility. Bureaucrats means the people who handle the bureaus. Yes, the Central Bureau of Investigation. ऐसे bureaus means all those who are handling different departments, and authorities should understand their responsibility as a human being and should free these deprived children from the traps of their graves, grave of poverty, grave of lacking facilities, grave of hunger, hopelessness. They are called catacombs. He wants all the barriers that keep these children away from achieving true education to be broken down. So windows were barriers, that all those barriers which put a limitation on the children should be broken down. They should be given an opportunity to come out of their narrow and shabby lanes and extend, go away to the blue sky and waves rising over the golden sands. The children must be given the freedom to experience the wholesome bounties. Bounties means wealth. Wealth here refers to plentifulness of nature's fields and must be taught to express themselves freely. He wishes that all distinctions that separate them from merging with the outside world. Outside world here refers to the world of elite, be removed from their lives, that they too may have hope of a better, more secure future. That they are also able to think that they want something else, something better for their life. That desire to excel should also be encouraged in these children. Yes? समझ आया? Yes, ma'am. Yes, Akshat, Mohit? Yes, ma'am. Okay. Harshit? Yes, ma'am. Karthik, were you able to relate? पिछली क्लास में आप लोग नहीं थे, that's why I'm asking.
चलो नो वरीज, अगर आपको नहीं भी समझ आया नेक्स्ट क्लास में हम एक छोटा सा डिस्कशन फिर से रख लेंगे। अब हम सबसे पहले ऊपर वाली स्लाइड पे चल रहे हैं जहाँ पे हमने थीम्स के बारे में बात की थी। नाउ यू पीपल विल बी एबल टू कनेक्ट टू द थीम। मैंने थीम के बारे में पहले भी समझाया था। थीम इज द सेंट्रल आइडिया that the poet is trying to express, that the whole poem is revolving around, right? So let us move to the theme, that what all themes are being highlighted by the poet. Yes. So Chiransh. Yes, ma'am. Yes bacha, please read themes of the poem. Okay, ma'am. On themes of the poem, it exposes the social injustice and the inequality prevalent in our societies. It is not just the society of one or the other nation, but it is a global issue that poet has addressed to this poem. The poet aims to portray the conditions of the youngster residing in the slums and also effect upon the education system which has its own prejudice. It highlights the sharp contrast between the outer glorious world which is full of temptations and the life of the underprivileged children of the slum who are sitting in gloomy classrooms. Yes, thank you, Chiransh. So we talked about social injustice and inequality. Indirectly or directly, the poet is attacking, yes, pointing out that how people create inequalities in the society, how the people who are having all the facilities, the money with them, they are given all the chances, all the opportunities, but not the uh, underprivileged ones. इट इज नॉट जस्ट द सोसाइटी ऑफ वन और द अदर नेशन। मतलब हम यहाँ एक पर्टिकुलर नेशन की बात नहीं कर रहे कि हम कहें नहीं जी यूएस की बात कर रहे हैं या ब्रिटेन की बात। दिस इज अ ग्लोबल इशू that this kind of social injustice exists everywhere in some form or the other. The poet aims to portray, show the condition of the young minds, young people who are staying in slum and those who do not have an opportunity, how hopeless they are. And he's also at the same time trying to reflect on the education system, that education system has its own prejudices. Prejudices word आया prejudgment से, कि एजुकेशन सिस्टम में भी अपनी प्री जजमेंट है कि एक स्लम का बच्चा अच्छा निकल ही नहीं सकता, स्लम का बच्चा अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ उसी में रहता है कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, या लड़ने में। हर एक के अपने अपने माइंडसेट होते हैं कि मतलब सब जनरली लोग क्या सोचते हैं, ये तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा, ये तो पढ़ ही नहीं पाए, इसको कितनी भी फैसिलिटी दे लो। I am telling about the general perception. It highlights the sharp contrast, that how contrasting, how different the world, the outer glorious world is to the world of slum. How tempting it is and how difficult it is the life of underprivileged children. The children who are getting education in a gloomy classroom, and all the education, everything that is being taught to them, even the images, the pictures in the class are not relatable. The children are not able to connect to them. Yes, आजकल हम बड़ी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं कि आप लोग अगर आप उस चैप्टर से कनेक्ट कर पाते हो तो आप ज्यादा समझ पाते हो। तो आप सोच के देखो, जहाँ बच्चे ये समझ ही नहीं पा रहे कि मैप किस चीज को शो कर रहा है, वैली, फ्लावर वैली क्या होती है, डोम्स क्या होते हैं, शेक्सपियर कौन है, वहां वो बच्चे क्या सीखेंगे और क्या याद करेंगे, राइट? चलो अब इसमें नेक्स्ट पार्ट है that we are going to talk about the poetic devices, literary devices. Yes. So stanza by stanza we'll go on, right? या एक काम करें, मैं स्टैंजा को दिखाऊं पर उसके बाद में बताती जाऊं तो यू पीपल विल बी एबल टू नोट डाउन। इज इट पॉसिबल, या ऐसे ही चलें जैसे दिया हुआ है? इसमें बहुत कम है। आई एम गोइंग टू एड ऑन मोर पोएटिक डिवाइसेस। बताओ अक्षत, चिरांश, मोहित, हर्षित, कार्तिक। पोएटिक डिवाइसेस आर टू बी मार्क्ड, हाउ विल यू लाइक टू मार्क देम? ऐसे जैसे दिखा रखा है अभी लिटरेरी डिवाइसेस, मैं बताती जाऊं या आप लोग अपना इनपुट देना चाहोगे? आई वांट दैट यू शुड आल्सो बी गिविंग योर इनपुट। बोलो, जल्दी से बोलो, कोई तो बोलो, कैसे करना है? मोहित? Ma'am, that way, ma'am. The other way.
The other way. Okay, so I am showing you the stanza. I'll move my cursor on the word which is having poetic device. आप लोग बताना कौन सी poetic device है. Just raise your hand. Yes. So firstly this one. Far, far. Raise hands. चिरांश. alliteration. नहीं बच्चा, एलिट्रेशन होता है सिर्फ साउंड रिपीट हो रहा होता है, यहाँ तो पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है ना. Repetition. रेपिटेशन. यस. फार फार इज रेपिटेशन. यस. चलो अब नेक्स्ट. लाइक रूटलेस वीड्स. लाइक रूटलेस वीड्स. Personification. क्या हो गया, क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर कैसे आ गया? लाइक है ना. alliteration. सिमिली. मैम सिमिली. सिमिली. लाइक रूटलेस वीड्स. सिमिली क्या होता है? When we are making a comparison, children are compared to unwanted weeds which are not having roots. चिरांश. मैम ऐसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे पता लगता है. बेटा ये आपको याद करना पड़ता है कैसे पता लगती है. कोई टेक्निक नहीं है कि कैसे कोई क्रैम कर लोगे और आपको याद हो जाएगा. चलो मैं बेसिक से बताती हूँ. ठीक है, अभी इसको नोट करो और मैं एक काम करेंगे, हमें क्लास रखेंगे. मुझे लगता है तुम सबको पोएटिक डिवाइसेस पे एक लेक्चर की जरूरत है कि पोएटिक डिवाइसेस तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखो. फार फार ये तो समझ आया. वर्ड रिपीट हो रहा था इसलिए रेपिटेशन. ठीक है, अब देखो लाइक रूटलेस वीड्स. अब यहाँ पे रूटलेस वीड किसको कहा गया है? बच्चों को, है ना. बच्चों को कहा गया है ना कि जैसे Yes. जैसे वीड्स किसी को नहीं चाहिए होते वैसे ये बच्चे भी अनवांटेड हैं. इनको सोसाइटी को इनकी जरूरत नहीं है. देयर हेयर आर अनकेप्ट. तो अब रूटलेस वीड से चिल्ड्रन का कंपैरिजन किया और यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया? लाइक. तो ये क्या हो गया? सिमिली. सिमिली में क्या होता है? जब हम कंपैरिजन करते हैं विद लाइक और एज. यस चिरांश. पर personification में भी तो कंपेयर करते हैं with things and with the person. बेटा पर्सोनिफिकेशन होता है जैसे मेरा ये लैपटॉप है. अगर मैं कहूं माय लैपटॉप टोल्ड मी, लैपटॉप बोल सकता है? मैम नो मैम. नहीं ना. अब मैंने बना दिया अपनी पोम में अपने एक्सप्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने रीडर को कन्वे करने के लिए कि मेरा लैपटॉप भी, आई एम सेंसिटिव टूवर्ड्स माय लैपटॉप, कि मैं ये भी सुन पा रही हूँ कि मेरा लैपटॉप मुझसे क्या कहना चाहता है. तो आई एम गिविंग द ह्यूमन क्वालिटीज टू अ नॉन लिविंग थिंग. उस केस में है वो पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन हिंदी में आप इसे कहते हो मानवीकरण. 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद हो तो. यस, जब आप नॉन लिविंग थिंग को लिविंग क्वालिटी दे देते हो. अब अगर रिवर है, रिवर बह रही है, रिवर बोल सकती है. अब अगर रिवर का ही तरफ से मैं गाना गाना शुरू कर दूं, आई कम फ्रॉम द हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न, आई कम फ्रॉम बिकरिंग वैली. अब आई यहाँ पे कौन है? मैं रिवर की तरह बोल रही हूँ. रिवर अपने बारे में अगर आपको बताना शुरू कर दे तो क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन. मतलब जब किसी नॉन लिविंग थिंग में किसी लिविंग थिंग की क्वालिटी आ जाती है तब हम उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. स्पेशली वही क्वालिटी जो नॉन लिविंग में नहीं एग्जिस्ट करती. अगर मैं कहूं माय लैपटॉप स्टार्टेड ब्रीदिंग, इट टर्न्ड हॉट. यस, इट्स पल्स वाज वेरी हाई. तो मैंने क्या किया? लैपटॉप को पर्सोनिफाई कर दिया. लैपटॉप में पल्स नहीं होती ना, लैपटॉप में हार्ट बीट नहीं होती. आई कुड हियर द हार्ट बीट ऑफ माई लैपटॉप. तो मैंने क्या किया? पर्सोनिफाई कर दिया. ओके. अब पर्सोनिफिकेशन की तरह ही एक चीज और भी होती है. अब अगर मैं, जैसे आप लोग अपने पेन से काम कर रहे हो तो सडनली पेन काम करना बंद कर देता है, खासतौर से एग्जाम के टाइम पे. ओ भाई पेन यार तू क्यों चलना बंद हो गया? अभी तेरे को बंद होना था, 15 मिनट का पेपर रह गया है और 15 मिनट 10 मिनट रह गए हैं टाइम ओवर होने में. यार तू अभी बंद हो गया. अब आप अपने पेन से बात कर रहे हो, है ना. पेन नहीं जवाब देगा कि मैं क्यों बंद हो गया, मेरे में रिफिल खत्म हो गया. बट आप अपने पेन से बात कर रहे हो. दैट इज अपोस्ट्रोफी. ओके, डिफरेंस समझ आया? पर्सोनिफिकेशन और अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी भी एक पोएटिक डिवाइस है. जब आप कहते हो ओ माय गॉड, ओ माय कार, व्हाई आर यू नॉट स्टार्टिंग अप, तो दैट इज अपोस्ट्रोफी. अब कार की तरफ से अब कोई आंसर मिलने लगे तो वो हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन.
oh the fuel is over that's why I'm not working, then it will be personification. ठीक है? Yes, चलो ma'am. सेकंड लाइन में क्या था? simile. Like rootless. Yes, like rootless weeds Yes. is simile, right? now अब देखो थर्ड लाइन में the tall girl with were weighed were down the, पहले तो with और वो साउंड आ रही है, वो साउंड आ रही है. यस, दिस इज एलिट्रेशन. यहाँ पे है नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे नहीं है अभी विद क्योंकि प्रेपोजिशन है. अब देखो वेट डाउन द कॉन्सोनेंट्स, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट, हमने वॉवल कॉन्सोनेंट किए थे, याद है वॉवल क्या होते हैं? अक्षत वॉवल कौन से होते हैं? अक्षत A-E-I-O-U. यस, A-E-I-O-U. और उनके अलावा सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट. अब जब कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट हो रही होती है, अब डी क्या है? कॉन्सोनेंट है ना. कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट हो रही थी तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स. वॉवल की साउंड रिपीट हो रही है तो कहते हैं एजोनेंट्स. वर्ड के बीच में, शुरू में नहीं, बीच में. अब ये देखो नेक्स्ट लाइन में देखो, पेपर सीमिंग बॉय. अब ये क्या है? पेपर सीमिंग बॉय. बॉय को किससे कंपेयर किया है? पेपर से. पेपर से, लेकिन लाइक और एज यूज नहीं किया ना. यस मैम. तो ये क्या है? मेटाफर. क्या है ये? मेटाफर. जब हम कंपैरिजन करते हैं विदाउट लाइक और एज, दिस इज मेटाफर. मैम ये पर्सोनिफिकेशन क्यों नहीं है? बच्चा बॉय तो ऑलरेडी पर्सोनिफाइड है, बॉय तो ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग है. ओके. जब नॉन लिविंग को लिविंग बनाते तब पर्सोनिफिकेशन होता है. ठीक है? अगर हम ये बोलते कि पेपर को बॉय से कंपेयर कर रखा है फिर पर्सोनिफिकेशन. नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम बॉय की बात कर रहे हैं ना, ऊपर से हम बच्चों की तो बात करते आ रहे हैं, पेपर की बात थोड़ी कर रहे थे अब तक. ऊपर के कॉन्टेक्स्ट से अब तक आए तो हम बॉय के बारे में बात कर रहे हैं ना, बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं ना सारे. Yes, बच्चे को पेपर से, पेपर लाइक, पेपर सीमिंग मींस पेपर अपीयरिंग, पेपर की तरह थिन. एक्सक्यूज मी मैम. यस. हम पर अगर हम इसी लाइन में बॉय को पेपर से कंपेयर करें फिर तो वो पर्सोनिफिकेशन होगा ना. बच्चा बॉय को पेपर से कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर, क्वालिटी नहीं दे रहे हैं. अगर हम पेपर को कहते हैं कि द पेपर वॉज टॉकिंग, द पेपर वो ड्रैंक वाटर, अगर अब मैं इसमें कहती द पेपर सीम टू बी थर्स्टी, इट ड्रैंक ऑल द वाटर, तो वो होता पर्सोनिफिकेशन. ओके. ओके. अब यहाँ पेपर जो है कंपेयर किया गया कि बॉय जो है पेपर की तरह पतला था. यस मैम. ठीक है, आपको समझाने के लिए कि बॉय कितना पतला था, बॉय कितना लीन था. विद रैट्स आईज. अब रैट्स आईज क्या है? किसकी आईज को कंपेयर किया रैट्स आईज से? बॉय की आईज. बॉय की आईज को. तो यहाँ पे भी क्या है? मेटाफर. राइट. बॉय की आईज को किससे कंपेयर किया? रैट की आईज से, एज दे आर ग्रीडी, कॉशियस. तो यहाँ पे रैट की आईज और बॉय की आई को कंपेयर किया, दैट्स व्हाई इट इज मेटाफर. राइट. It is metaphor because the like word is not used here. हाँ, वेरी गुड. एज और लाइक वर्ड इज नॉट यूज्ड. कंपैरिजन किया है बट एज और लाइक यूज नहीं किया हमने, इसलिए मेटाफर है. ऊपर लाइक यूज किया था इसलिए वो सिमिली था. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. अब यहाँ क्या है? अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled disease. इसमें कुछ नहीं है. His lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. Yes. इसके बाद on sour cream walls. अब ये sour क्या है? sour cream क्या है? sour cream क्या है? मेटाफर. मेटाफर. Metaphor. समझ आया?
अब यहाँ पे क्रीम सिर्फ क्रीम कलर नहीं है, उस क्रीम कलर को किससे कंपेयर किया है? खट्टी क्रीम से। जो क्रीम खराब हो जाती है, अनप्लेजेंट हो जाती है टेस्ट में भी और दिखने में भी। यस मैम। राइट। अच्छा, इसके बाद शेक्सपियर्स हेड। अब देखो शेक्सपियर हेड को मार्क करो, एल्यूजन लिखो पहले, एल्यूजन इसके साथ, फिर मैं बताऊंगी क्या होता है। लिख लिया? अब एक एग्जांपल देती हूँ, तुम लोग बताना तुम लोगों ने उसके बारे में सुना है या नहीं सुना। बैटमैन, बैटमैन के बारे में सुना? यस मैम। यस बैटमैन के मैम। बारे में सुना है तुम सबने, है ना? बैटमैन वाज अ सुपर हीरो। यस। अब अगर बैटमैन का एग्जाम्पल मैं अपनी पोम में यूज करूं, वी ऑल नो हु बैटमैन वाज। यस। अब बैटमैन स्टोरीज में एग्जिस्ट करता था, अगर उसका एग्जाम्पल मैं यूज करूं अपनी पोम में किसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज एल्यूजन। एल्यूजन इज गिविंग रेफरेंस टू समथिंग दैट इज ऑलरेडी नोन। रैपंजल के बारे में सुना है? मोहित, यस मोहित। मोहित, आस्क योर डाउट। मैम शेक्सपियर का फोटो तो पहले से क्लास में लगा हुआ था, तो उसको तो एक्सप्रेस करना ही था फिर। बच्चा, उसको एक्सप्रेस पोएट ने यूज किया ना, पोएट की जो इमेजिनेशन है ना कि शेक्सपियर का फोटो लगा हुआ है क्लास में। हमें थोड़ी पता है क्लास में लगा हुआ था पहले से। पोएट ने यूज किया ना इंटेंशनली कि क्लास में कौन कौन से फोटोज लगे हुए थे। यस मैम। तो जब हम कोई भी ऐसा कैरेक्टर यूज करते हैं जिसके बारे में हमारे रीडर्स को ऑलरेडी पता है, चाहे फोक टेल के थ्रू, चाहे नरेशन के थ्रू, किसी स्टोरी में, किसी प्ले में उन्होंने ऑलरेडी उसके बारे में पढ़ा हो, पता उन्हें, नोन नेम है, उसको हम कहते हैं एल्यूजन, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। चिरांश, यस चिरांश। मैम एक बार स्पेलिंग्स बता दो प्लीज। ALLUSION। ओके। ALLUSION। मैं चैट बॉक्स में भी लिख रही हूँ, लो चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया, तुम सबको दिख जाएगा। ठीक है, दिस इज एल्यूजन। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही थी रैपंजल का। रैपंजल कौन थी, पता है तुम लोगों को? नो मैम। नहीं पता? बोलो मोहित, कुछ कह रहे थे आप? मैम शी लिव्स ऑन द टावर एंड मैम शी हैज वेरी लॉन्ग हेयर मैम। यस। रैपंजल कौन थी? उसके बहुत बहुत लंबे बाल थे। चिरांश। यस मैम। यस, आपने कुछ पूछना था बेटा, यू रेज योर हैंड। वो पहले का ही था। अच्छा ठीक है। सो रैपंजल वाज हैविंग वेरी 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 लॉन्ग हेयर, दैट हर हेयर यूज्ड टू come down like a rope from the tower. She used to live in a long, very tall tower. तो अब रैपंजल का अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे अपने रीडर्स को समझाने के लिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो वहां पे रैपंजल का जब मैंने एग्जाम्पल यूज किया, देन इट बिकम्स एल्यूजन। जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग को अपनी कोई सिचुएशन बतानी होती है, जब अपनी कोई सिचुएशन समझानी होती है, यार आज तो वो कूली नंबर 1 जो मूवी देखी थी ना, वैसी सिचुएशन हो गई मेरे साथ। समझाते हो कई बार आपस में बात करते हुए, मैं वैसे ही फंस गया था जैसे वरुण धवन उस मूवी में फंस गया था, उस सिचुएशन में। यस, दैट इज एल्यूजन। आप ऐसे एग्जाम्पल का यूज कर रहे हो जो ऑलरेडी सामने वाले को पता है, नोन है, एंड द पर्सन कैन इजीली रिलेट टू इट। आया समझ सबको? यस मैम। यस। सो शेक्सपियर हेड इज एल्यूजन। नाउ टायरोलीज वैली। अब ये टायरोलीज वैली क्या है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैली है ऑस्ट्रिया में। एल्यूजन। एल्यूजन, यस। यस, एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चा। मैम मतलब आप किसी भी नेम प्लेस एनिमल थिंग का यूज करके बताए, या मतलब किसी चीज को समझाने की प्रॉपर कोशिश नाउन, करे तो प्रॉपर नाउन, चाहे वो नेम हो, प्लेस हो, एनिमल हो, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। एनिमल के केस में हम जनरली ऐसे नहीं करते। अब अगर हम वेयरवुल्फ की बात कर रहे हैं तब वो एल्यूजन है, अगर मैं वुल्फ की बात करूं कोई एल्यूजन थोड़ी हुआ। मतलब स्पेसिफिक चीज की बात हाँ कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं अब लॉर्ड राम को यहाँ पे यूज करूँ तो वो एल्यूजन है। यस मैम। ठीक है।
अब ये देखो, Yes. मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल दे रही थी ना अभी कि हम लोग वो कॉन्सोनेंट्स, अब यहाँ देखो मुझे इस लाइन में बताओ कॉन्सोनेंट्स है, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड, डोम, राइडिंग ऑल सिटीज, देख के बताओ कॉन्सोनेंट्स है, ढूंढो कौन सी साउंड रिपीट हो रही है, हिंट मैंने दे दिया, कौन सी मैम साउंड डी रिपीट हो रही रिपीट हो रहा है? है। मैम डी रिपीट हो रहा है, यस, सिविलाइज्ड। क्लाउड ड, डॉन ड, सिविलाइज्ड ड, डोम ड, राइडिंग ड, ड की साउंड रिपीट हो रही है बीच में, Yes. दिस इज कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो कॉन्सोनेंट्स। मैम पर बीच में थोड़ी ना, और ये डोम के तो स्टार्टिंग में। डॉन में स्टार्टिंग में हो रही है ना, कोई बात नहीं, लेकिन साउंड तो कंटिन्यूअस आ रही है ना, अगर सब में शुरू में होती तो एलिट्रेशन होता, अब सब में शुरू में नहीं है लेकिन साउंड रिपीट हो रही है तो कॉन्सोनेंट्स है। ओके मैम। ओके, अब देखो नेक्स्ट में, अब मुझे कौन बताएगा, इसमें भी है एक साउंड जो रिपीट हो रही है, देखो आइडेंटिफाई कर पाओ तो, बेल्ट, फ्लारी, टायरोलीज वैली, अक्षत, मोहित, हर्षित, कार्तिक, ट्राई तो करो। मैम टैरलीज एंड वैली, कौन सी साउंड? फ्लोरी, टैरलीज एंड वैली, वाई, वाई, ठीक है, मैम ये ई। तो वाई, वाई, मैं पूरी लाइन में कह रही हूँ, पूरी लाइन में एक साउंड रिपीट हो रही है, चेक करो। मैम ई। ई साउंड, यस, ई क्या है, वॉवल है Yes, कॉन्सोनेंट है? मैम वॉवल। वॉवल, अब वॉवल जब रिपीट होता है तो उसको हम कहते हैं एजोनेंट्स, देखो चैट बॉक्स में मैंने लिख के भेजा है एजोनेंट्स, और पहले वाला जो था वो क्या था, कॉन्सोनेंट्स। जब वॉवल साउंड रिपीट होती है तो एजोनेंट्स, कॉन्सोनेंट साउंड तो कॉन्सोनेंट्स। यस चिरांश, somebody was saying something? आगे बढ़े? यस मैम। यस, चलो, एजोनेंट कॉन्सोनेंट मुझे लगता है समझ आ गया होगा, अगर आप इतनी पोएटिक डिवाइसेस भी डेली करोगे ना तो मुझे लगता है पोएटिक डिवाइस पे तुम्हारा हाथ बैठ जाएगा कि तुम्हें समझ आ जाएगा कौन सी पोएटिक डिवाइस कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अब देखो वर्ल्ड 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 वर्ल्ड, रेपिटेशन, यस बच्चा। मैम अगर वर्ड रिपीट हुए तब तो रेपिटेशन है, अगर साउंड रिपीट हुए तो फिर यही दो लगेंगे ना, वो वॉवल और कॉन्सोनेंट का। वॉवल और कॉन्सोनेंट तब लगेंगे जब बीच में रिपीट हो रहे, जैसे यहाँ हो रहे थे, ई की साउंड बीच में रिपीट हो रही थी, डी की साउंड हो रही थी। अभी एलिट्रेशन का भी एग्जांपल देती हूँ, देखना अभी तुम लोगों को एलिट्रेशन भी समझ आ जाएगा, एलिट्रेशन का डिफरेंस भी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, इधर देखो जहां मेरा कर्सर है, जो ग्रीन लाइन का स्टैंजा है, थर्ड स्टैंजा, इसमें देखो, विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स, दिखा, यस मैम। बॉटल बिट्स इज एलिट्रेशन, ब ब बिगिनिंग में आ रहा है ना, नहीं मैम, अगर स्टार्टिंग में है फिर हाँ स्टार्टिंग एलिट्रेशन में है, आए अगर तो मिडिल में आए या एलिट्रेशन, एंड में फिर क्या? स्टार्टिंग में आए तो एलिट्रेशन है। तुम लोगों ने वो मैम ऐड अगर देखी है वोडाफोन की, शी सेल्स सी शेल ऑन द सी शोर, देखी है? यस मैम। यस, उसमें क्या कर रहे हैं वो, एलिट्रेशन है तो यूज कर रहे हैं, श श श स सारे बिगिनिंग में आ रहे हैं ना, जितने टंग ट्विस्टर्स होते हैं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये सारा क्या है, प प प साउंड जो पापड़ की आ रही है वो क्या है, एलिट्रेशन। अनुप्रास अलंकार कहते थे तुम लोग हिंदी में इसे। यस चिरांश। मैम मैम श्योरली और अगर शेक्सपियर की एलिट्रेशन है। क्या चिरांश? मैम मोहित मैम, अच्छा मोहित दोबारा बोलो। मैम जो फर्स्ट लाइन में एकदम जैसे श्योरली और शेक्सपियर, तो वो भी एलिट्रेशन है। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, श्योरली, सुनो 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 सुनो, श वैसे आप ले सकते हो लेकिन श्योरली एडवर्ब है, शेक्सपियर नाउन है, समझ आया? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, यस बच्चा। मैम अगर स्टार्टिंग में अगर रिपीट हो रही है वर्ड्स में तब तो एलिट्रेशन है, अगर मिडिल या एंड ऑफ वर्ड्स में हो रही हो फिर क्या करेंगे? तो बताया तो मैंने, वर्ड नहीं बच्चा, साउंड, पहले तो वर्ड और साउंड में डिफरेंस समझो।
वर्ड नहीं, साउंड। अगर स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन, बीच में हो रहा है तो मैंने आपको बताया ना वॉवल साउंड है तो एसोनेंस, कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट्स। मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में? सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं। अभी देखो बॉटल बिट्स है, ब, बॉटल का ब, बिट्स का ब, तो बॉटल बिट्स क्या हुआ? एलिट्रेशन। यस मैम। समझ आया? सेंटेंस के मैम बीच शुरू में होना जरूरी नहीं है, वर्ड के शुरू में होना जरूरी है। मैम अगर सेकंड पोजीशन पे आता कोई वर्ड जैसे तो ओपी वो लगे तो मैं कॉन्सोनेंट्स फिर होता। अगर यही बॉटल बिट्स में ब ब जो है दिया हुआ है, अगर ये सेकंड पोजीशन पे होता तो कॉन्सोनेंट्स होता। नहीं मैम, जैसे बॉटल में बी सेकंड पे होता और बिट्स में फर्स्ट पोजीशन पे होता, फिर क्या कौन सा लेते हैं हम? फिर कॉन्सोनेंट्स होता। एलिट्रेशन में सब शुरू में। वरना कॉन्सोनेंस हो जाएगा। हाँ, अगर ब बीच में होता बॉटल में और बिट शुरू में होता तब वो बनता कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि अब दोनों में शुरू में है तो आएगा एलिट्रेशन। ओके मैम। ओके, चलो अब इसको आगे और बढ़ते हैं। चिल्ड्रन दीज विंडोज। अब अच्छा हम यहाँ पे थे ना, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वर्ल्ड वर्ल्ड मार्क कर लिया, मैम रेपिटेशन। रिपीटेशन। यस। यस मैम। अच्छा इसके बाद ये देखो, चिल्ड्रन दीज विंडोज, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। अब स्ट्रीट किसको कहा है? मैम स्लम को। स्लम को। स्लम। और लेड स्काई क्या है? लेड स्काई क्या है? यस चिरांश। मैम इसमें एलिट्रेशन ही होगा। किसमें होगा? मैम वेरी इसी गुड। सेंटेंस में स्ट्रीट स्ट्रीट और सील्ड, स्टील। स वेरी गुड, एलिट्रेशन। और बताओ लेड स्काई क्या है? लेड स्काई इज ब्राउन कलर्ड स्काई, डार्क स्काई। लेड क्या होता है? हम लोगों को पता है, हम पेंसिल लेड यूज करते हैं, डार्क होती है ना। So this lead sky is talking about the dark future of the kids in the slum. तो ये क्या है? ये पूरी लाइन क्या है? मेटाफर। स्ट्रीट किसके लिए स्टैंड कर रही है? स्लम के लिए। लेड मैम स्काई मैं का मतलब कंपेयर तो नहीं कर रही, तो फिर मेटाफर कैसे हुई? कंपैरिजन है ना बच्चा, इनडायरेक्ट। जैसे स्काई जब लेड कलर, जब नाइट स्काई जो होता है वो रात होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल डार्क होता है, ऐसे ही बच्चों का फ्यूचर भी बिल्कुल डार्क है, होपलेस है। ठीक है? मैम और डायरेक्ट कंपैरिजन का एग्जांपल क्या होगा? किसका? मैम जैसे ये तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा, तो मैम हाँ, डायरेक्ट कंपैरिजन का ये रहा, एग्जांपल क्या लाइक होगा? रूडलेस वीड्स। लाइक लग गया ना? मैम मतलब अगर डायरेक्ट है तब वो सिमिली, और अगर इनडायरेक्ट हो तो वो मेटाफर है। वेरी गुड, आ गया समझ, यही है। ठीक है, ओके। चलो अब आज हमने नैरो स्ट्रीट। अब ये देखो फार फार फिर से आ गया, एलिट्रेशन। मैम रेपिटेशन। एलिट्रेशन। ठीक है, रिवर्स केप्स। अब ये देखो, अब यहाँ पे भी एक और है, बताओ मुझे कोई बता पाए तो। रिवर्स केप्स स्टार्ट्स ऑफ वर्ड्स। मैम एक्सक्यूज मी। रिवर मैम साउंड रिपीट हो रही मैम। कौन सी साउंड? कॉन्सोनेंट्स। स, वेरी गुड, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स। स साउंड रिपीट हो रही है ना। रिवर्स यस स, मैम। केप स, स्टार्स स, वर्ड्स स, कॉन्सोनेंट्स। यस चिरांश। मैम इसमें एलिट्रेशन भी तो होगा, जैसे फार फार फ्रॉम आ उसी गया पे आ उसके रही थी बाद। बच्चा, उसी पे आ रही थी। फार फ्रॉम, फार फार फ्रॉम नहीं, फार फ्रॉम। फार फार तो रेपिटेशन है। यस मैम। फार फ्रॉम, फ, मैम ये एलिट्रेशन होगा। एलिट्रेशन है। आया समझ अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? यस मैम। अब तुम सबके लिए काम है, जितनी पोम रह गई इसमें ऐसे सारे एग्जांपल्स तुम लोग ढूंढ के रखोगे नेक्स्ट क्लास तक। मुझे लगता है हम सब कर पाएंगे, है ना। यस मंडे मैम। को क्लास है तो थोड़ा सा माइंड को भी एक्सरसाइज देना, ये मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आरटीसी के टाइम पे कितना ही क्रैम कर लो, पोएटिक डिवाइसेस की कोई लिमिट नहीं है अगर आपको नहीं समझ आए। ठीक है, यस मैम। चलो ऑन दिस नोट पोम को हम अब वाइंड अप हमने ऑलमोस्ट कर दिया है। इसको जो फाइनल टचअप देना है वो मंडे की क्लास में देंगे। पोएटिक डिवाइसेस और सेंट्रल आइडिया वगैरह, मैसेज वगैरह सब कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके चलो, बाय ऑल ऑफ यू। बाय मैम। बाय, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, बाय।